اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسا ہے کہ کوئی میرے بغیر تمہیں پال سکتا ہو جو تمہارا رب کہلانے کے لائق ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نئے نقش میں نے تمہارے بنائے ہیں وہ کوئی اور دوسرا بنا دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپن سے لے کر کے موت تک جو تیری حفاظت میں نے فرشتوں سے کروائی ہے کوئی اور کروا دے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئینہ تجھبون، پھر کدھر جاتے ہو؟ پیٹھ کیوں پھیرے ہوئے ہو؟ مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے بتایا کہ اگر ایک انسان کو 70 مائیں دے دی جائیں، ایک بچے کے لیے 70 مائیں دے دی جائیں، اور وہ 70 مائیں ایک بچے سے محبت کریں، ان سے کہیں زیادہ میں اکیلا ایک بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحم مخلوق پر ایسے ہے جیسے ابھی سردیوں میں کوہل پڑتی ہے نا، انگلی سے انگلی نہیں دیکھتی، اس طریقے سے اللہ کے احسان، اللہ کا کرم، اللہ کی ستاری، اللہ کی فیاضی، اللہ کی غنیمت، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے ہوئے رہتی ہے ہمیشہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی پھر تم کدھر جاتے ہو؟ جب میں تمہارا رب ہوں تو پھر تم کدھر جاتے ہو؟ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والے کے۔ جو ہم جب قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کو جب ہم شروع کرتے ہیں، جب ہم نیت باندھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو نماز سے لے کے اور قرآن پھیرنے تک سب سے پہلے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے وہ سنی پڑھے، چاہے دیوبندی پڑھے، چاہے اس کو وہابی پڑھے، چاہے وہ تبلیغی پڑھے، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ پڑھے، آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کو پالنے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے تمہارے مقدر کی روزی بھاری پتھر کے بیچ میں ہو اور وہ پتھر سمندر میں ہو، اور اس میں تمہارے مقدر کی روزی ہے، وہ بھی سمندر میں پتھر پھٹے گا اور روزی تم تک آ کے پہنچے گی۔ اب ہمیں جو سوچنا وہ اس بات پہ سوچنا ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے ہمارے نبی پر ہے کہ جو زندگی اور آخرت کا مسئلہ ہے وہ نبی کے طریقے پر ہے۔ بھائی حدیث میں یہ لکھا ہے، حدیث میں وہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ سوال اب اس بات کا نہیں کہ ہر مسلمان جانتا ہے، یہ تو غیر مسلمان بھی جانتا ہے۔ سوال اس بات پہ کہ اس بات کو مانتا کون ہے؟ ماننے والا مسلمان ہے، اور مسلمان کسی مذاہب یا شرائط سے مطلب نہیں رکھتا۔ مسلمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے مقدر کی روزی تجھ کو مل کے رہے گی، تو پھر ہمیں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، ہم جمعے کو کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک دن میں 5، 2 دن میں 10، 3 دن میں 15، 4 دن میں 20، 5 دن میں 25، 6 دن میں 30، 7 دن میں کتنی ہوئی؟ 35۔ 35 نمازوں کو چھوڑ کے ایک نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ جب ہماری روح کو اللہ نے ہمارے جسم میں ڈالا، اندر ماں کے پیٹ میں ہڈی کہیں بنائی، آنتیں کہیں بنائی، نسیں کہیں بنائی، بال کہیں اگائے، آنکھیں کہیں لگائی،
वहां कौन सा कारीगर था हमारा दुनिया का, कौन सा दोस्त था, कौन सा ऐसा इंजीनियर था जो माँ के पास आता था और वो घर के जाता था। फिर अल्लाह ने बदलने के लिए 3 सिस्टम बनाए। ऐसे थोड़ी कहवा ली अल्लाह ने कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुम कह दो कि मैं तुम्हारा रब हूं। मैंने कहवा ली तुमसे, ऐसे ही कहवा ली, भाई कौन है नुमोल साहब है भाई, ऐसे ही कहवा ली, चलो ये तो कह दी। बाकी अल्लाह ने तो कुछ करके दिखाया है, जब रब कह हुआ है। फिर 3 चीजें बताइए तुम्हें कि जब तुम माँ के रहम से बाहर आए तो तुम्हारे दांत नहीं थे, जबान से तुम किसी दूसरे को पुकार नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे ये खाना है, ये नहीं कह सकते थे मेरे सीने में दर्द है या पैर में दर्द है या सर में दर्द है या कमर में दर्द है। जब मैंने तेरी परवरिश की, फिर उस दिन से, जिस दिन से जन्म हुआ 2 साल तक तू बदलता रहा, तेरा जिस्म बढ़ता रहा, तू बदलता रहा। जब तू तेरे पैरों से चलने लगा, टहलने लगा, तो इतना भी टहल सकता था कि किसी कुंडे में, किसी गड्ढे में जा गिरे, वहां मेरे फरिश्तों ने हिफाजत करी। फिर तू नहीं बदला, फिर तुझको कोत दी। 2 साल से लेकर 14 साल तेरी एक जिंदगी अलग थी, बादशाहों की जिंदगी थी। किसी भी चीज के लिए मचलना, किसी भी चीज के लिए जिद करना, किधर भी चलना, कहीं भी बैठ के खेलना, कहीं भी मिट्टी, नए कपड़ों पे मिट्टी डालना, कहीं कीचड़ में सन के आना, कहीं कुछ ऐब करके आना, किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचा के आना, किसी का उल्हाना लाना। फिर मैंने तेरा साथ दिया, फिर तुझको और तनाया, बदलने के लिए तुझको जवानी दी, तुझे आगे पीछे की बात सूझने लगी, तुझे अपने बारे में फिक्र होने लगा। फिर तू मेरी तरफ नहीं आया, फिर तुझे कमजोरी में डाला, तुझे बुढ़ापा दिया, तेरी आंखों को कमजोरी दी, उसे उन्हों को देखना, उन्हें दिखाई कम देने लगा, तेरे कानों को कमजोरी दी, सुनाई कम देने लगा, तेरे पैरों को कमजोरी दी, चलना कम लगा, हाथों को कमजोरी दी, इनमें ताकत कम हुई। यहाँ तक कि दुश्मन नहीं डरता, न कोई दोस्त डरता है, तो उससे फिर ऐसी कमजोरी आई। फिर तू मेरी तरफ नहीं लौटा, तो फिर इस जिंदगी में तूने मुझे रब माना कब? कब माना ये बताओ। नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? इस बात का हिसाब होगा। क्यों? कि अल्लाह ताला जब कह रहे हैं अपने बंदे से कि तुम मुझे छोड़कर किधर जाते हो, किधर फेरते हो पीठ को, कहां उस वक्त को लगाते जो वक्त मेरा है। अल्लाह ताला ने दिन और रात दोनों को बनाया, कभी रात को छोटा किया, दिन को बढ़ाया, कभी दिन को छोटा किया, रात को बढ़ाया। फिर आगे चल के अल्लाह ने किसी के दिमाग में डाली, इस दिन और रात पर घंटे बनाए, और दिन और रात पर 24 घंटे बनाए। अब इन 24 घंटे में से 22 घंटे तुम्हें दिए, जिनमें सोना भी है, खाना भी है, पहनना भी है, नहाना भी है, और भी जरूरियात हैं। और 2 घंटे अल्लाह ने अपने लिए लिए। पूरा दिन अल्लाह का है, पूरी रात अल्लाह की है। फिर अल्लाह कितना ले रहा है? अगर मैं हर आदमी को वहां से यहां तक 1000 रुपए दे दूं, और फिर तुमसे कहूं भाई इनमें से 2-2 रुपए दे जाओ, 1000 में से 2-2 रुपए दे जाओ, तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि 2 तो नहीं दे पाएंगे हम। हर आदमी कह देगा यार 998 रुपए तो बच रहे हैं, हमारा गया ही क्या है, हम आध घंटा ही तो यहाँ बैठे हैं, ले भाई मौल साहब 2-2 रुपये ले ले। तो अल्लाह ने 22 घंटे दिए हैं हमें फ्री रहने के लिए, 2 घंटे मांगे हैं हमसे। जो दे रहा है वो उल्टा हमसे मांग रहा है। अब इससे बड़ी बुराई और क्या होगी कि जिसका माल है उसको हम 2 घंटे भी नहीं लौटा, जो इसने हमें 24 घंटे दिए उसको हम 2 घंटे नहीं दे सकते, और 2 घंटे इकट्ठे नहीं मांगे, और फ्री में नहीं मांगे। 24 घंटा अल्लाह ताला ने दे करके 2 घंटे मांगे, फ्री में नहीं मांगे और इकट्ठे नहीं मांगे।
20 मिनट जोहर में, 5 मिनट असर में, 7 मिनट मगरिब में, 20 मिनट ईशा में, और भाई 5-6 मिनट फजर में लगे। अगर कोई पहले आता है तो जिक्र अज़कार, फिर इनाम दिया, तुम्हारी रोजी की बरकत बढ़ा दूंगा, तुम्हारी उम्र में बरकत बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नस्ल को पाकीज़ा कर दूंगा। कितने फजाइल बता दिए, कितने इनाम दे दिए नमाज पढ़ने पर। जो हिकमत वाले उलमाए वो लिखते हैं कि जब इंसान वजू करता है तो शकल सुधरती है। मत पढ़ो नमाज, वजू ही करके देख लो 40 दिन, जो वजू का कायदा है वो करके देख लो, आ जाता है ना शकल पे निखार। और कुरान से अकल सुधरती है, जो कुरान बता देता है कि कहां तो गुमराह हो रहा है, यहां से आ जा। ये इंसान जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, कुरान हर चीज को बता देती है, बता देता है। तो कुरान से अकल सुधरती है और नमाज से नस्ल सुधरती है। देख लो, तजुर्बा करके देख लो। अगर 8, 9, 10, 12 या 1 साल 2 साल का बच्चा है, वहां घर पे नमाज पढ़ के देख लो, यहीं से पता लग जाएगा इसी बच्चे से कि नस्ल कैसे सुधरती है। तुम्हारे मुसल्ले पे आके आगे लेट के ढोक देगा, बैठ के ढोक देगा, तुम्हारे आगे घूमेगा, अल्लाह मोड़ेगा, कुछ भी मोड़ेगा। फिर 2 घंटे भी हमारे पास नहीं, फुटकड़ में भी नहीं, खेरीज में भी नहीं, खेरीज करके भी नहीं दे सकते। तो फिर हमारा जो हमने जो वादा किया है कि हाँ बेशक आप ही हमारे रब हो, आप ही हमें पालते हो, कहीं से कहीं भी शायद ये मामला नहीं बैठ पाता कि भाई हम अल्लाह को रब मानते हैं। अगर हम अल्लाह को रब मानते तो सही बात बताओ, अजान को हमारे कान ठूंस के बैठते क्या? कोई अमल नहीं होता क्या अगर हम अल्लाह को रब मानते? फिर यहां फरमा दिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कह दिया कि बेशक आप ही हमारे रब हो। तो फिर अल्लाह ने कह दिया कि फिर मैं रब हूं तो मुझे छोड़कर जा कहां रहे हो, किधर जा रहे हो? ये बात समझ में नहीं बैठी। 24 घंटे के दिन और रात बना करके 2 घंटे मांगे, ये समझ में नहीं बैठी। जमीन को फर्श बना दिया, चलेंगे, दौड़ेंगे, इसको खोदेंगे, इसमें से पानी निकालेंगे, इसमें मकान तामीर करेंगे, अंडरग्राउंड बनाएंगे, जमीन से हजारों फुट ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, ये अल्लाह ने दे दिया। ऊपर अर्श, कभी धूप ज्यादा है तो बदली भी आती है, ये भी अल्लाह ने बना दिया। तो फिर अल्लाह ने कहा इनको भी देख के अगर नहीं समझे तो फिर अब खुला चैलेंज समझ लो। अब जब तक तुम इस जमीन के ऊपर हो, जब तक तुम्हें छूट दिए तुम तुम्हारी मर्जी के मालिक बने रहो, और जिस दिन 2 फुट नीचे आओगे ना, जमीन में आओगे, हर हाल में आओगे, क्यों ये भी खुला कर दिया। हम रोज देख रहे हैं, कहीं से भी कहीं तक कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो अल्लाह ताला ने कहा दिया कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर शय को मौत का मजा तो चखना पड़ेगा, ये भी अल्लाह ने कह दिया। अब यहाँ पे भी हम तैयार हैं, अरे जब मरेंगे जबकि जब देखी जाएगी। तो वो देखने वाली जो बात है वो भी अल्लाह ने बताई कि देखी क्या जाएगी। ये इंसान है, आदम के बेटे, तू जो मुझे नाकार कर इस जमीन पर अकड़ के चल रहा है, अगर मैं चाहूं तो एक कुन कहने से ये जमीन इधर की इधर हो जाए। कल ही आया ना तूफान, कितना नुकसान हुआ है भाई। जो बंगाल से कहां से गुजरता आ रहा है, ये तो भरतपुर की कार गुजारी है जो कल का है, कितना नुकसान हुआ है। रोक लेगा कोई? दुनिया का कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई भी रोक सकता है क्या? यहाँ का तंबू वहां फेंक दिया, अब ढूंढते रहो 2-4 दिन तो कीन ना पाए। दुकानों के सामान गए नीचे से, जमीन पे से उठ के उड़ उड़ के नहीं, चलो इस मोहल्ले के उस मोहल्ले में पहुंचा दिए, ढूंढते रहो। तो अल्लाह ने ये भी बताया, और फिर अल्लाह ने ये बताया कि जब तू कब्र के अंदर आ जाएगा, यानी जमीन के नीचे आ जाएगा, तो जब मेरे 2 फरिश्ते तेरी जमीन को चीरते हुए तेरी कब्र में दाखिल हो जाएंगे, और तुझसे सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि अब बता तेरा रब कौन है। जमीन के ऊपर क्या कहा?
जमीन में भेजने से पहले क्या क्या कहा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने क्या कहा? सामने खड़े होकर के क्या कहा? बेशक आप ही हमारे रब हो। अब जब जमीन पे आए तो अल्लाह ने कहा फ़अयना तज़हबून, अब किधर जा रहे हो? जब मैं तुम्हारा रब हूं तो फिर किधर जा रहे हो? नहीं बैठी समझ में बात। फिर बीच की बातें बताई, ये जमीन मैंने बिछाई है, फिर अर्श मैंने लगाया है, ये चांद सितारे मैंने निकाले हैं, ये तुझे जो भी सलाह दी मैंने दिए, फिर तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तो अब सुन, अब तू नीचे आ जा, वहां ड्यूटी लगेगी मेरे फरिश्तों की। वो तुझसे सबसे पहला सवाल वही पूछेंगे जिसको तुम नाकार दिया तूने, जिससे तुम मुकर गया, वो पूछेंगे बता अब तेरा रब कौन है। अब हम तो सुन लेना तालीम में कि भाई ये फरिश्ते ये पूछेंगे कि तेरा रब कौन है, तो हम कह देंगे कि भाई हमारा रब तो अल्लाह ही है ना भाई। भाई हमारे सबके दिमाग में तो है कि फरिश्ते आएंगे वो पूछेंगे कि हम तेरा रब कौन है, तो हम कह देंगे रब अल्लाह ही है। तो सिर्फ तुम ही अकल रखते हो, रब की मानते नहीं, रब की खा करके उसका एहसान नहीं मानते, रब की तरफ चलते नहीं, और कब्र में जब फरिश्ते आएंगे पूछने के लिए तो तुम कह दोगे रब अल्लाह ही है हमारा। तो फरिश्ते भी तो अल्लाह के वहां से आते हैं, फरिश्ते भी तो हमसे पहले बनाए हैं, फरिश्तों की भी तो हमसे ज्यादा अकल दी है। वो यूं भी तो पूछ लेंगे किस किस बात में रब माना। जब तू अल्लाह को रब मान के उसकी रोजी को खा रहा था, उसकी रोजी को पी रहा था, उसकी हवाओं से लुत्फ उठा रहा था, उसकी बारिशों से तू लुत्फ उठा रहा था, जब तूने उसको रब कब माना? जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया था तुझे कि भाई ये चीजें तेरे लिए हराम है, बर्बाद कर देंगे, उनसे रुका था क्या तू? जब तूने औलाद पे तवज्जो लगाई, जब तूने पड़ोसी पे तवज्जो लगाई, जब तूने रिश्तेदारों पे तवज्जो लगाई, जब तूने अपने दोस्तों पे तवज्जो लगाई, जब तो अल्लाह पर तवज्जो नहीं लगाई। फरिश्ते भी तो जानते हैं इस बात को कि क्या पूछना है इससे। दूसरी बात पूछेंगे बता तेरा दीन क्या है, तो बताएं कहा। हमने कहा तो हमारा दीन कहा है, हमारा दीन गोश्त रोटी है। भैया हमारे तो हम मुसलमान है, अच्छो कि कोई कुछ उल्हानो ही ना दे, पड्डा को खाए तो, ऊंट को खाए तो, बकरा को खाए तो, मेंढा को खाए तो, भेड़ को खाए तो, कबूतर को खाए, कबूतरी को खाए, मुर्गा को खाए, मुर्गी को खाए, कोई नो तो कहे भाई मुसलमान है। तो यही तो है हमारा दीन, और कहा है। सलमान शाहरुख के नाम रख लियो हमने, या से बड़ो हम कहा बताएं तो को हमारा दीन क्या है। तो जो दूसरा सवाल होगा ये पूछा जाएगा बता तेरा दीन क्या है, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा ठीक है, यहां तक भी बात सही है, बिल्कुल मुकम्मल बात यह है कि दीन ही इस्लाम है हमारा। पर वो फरिश्तों ने अगर यूं पूछ लिया कि दीन पे कितने दिन चलो 70 साल की उम्र में, दीन तो तेरा इस्लाम है, दीन सीखा कितना? और फरिश्तों ने अगर हमारी तरह कह दी, मैं जैसे कई बार कह दूं, बजाय रोटी ना खाने के और कोई भी चीज ना पूछने के यूं पूछ लियो को बता तेरे दीन में इस्तिंजा का तरीका क्या है, तो क्या बताएंगे भाई? अरे ये तो सबसे छोटी बात है भाई, हमें पेशाब पाखाना तो जाना है, और जरूरी है कि दिन में कितनी बार जाना है। अगर कुदरतन ये पूछ लिया कि चलो और बात तो छोड़, तो दीन की, तेरी नमाजों को छोड़, तेरी ज़कातों को छोड़, तेरे रोजों को छोड़, तेरे सफर को छोड़, जो भी है तेरी हज को छोड़, तू तो सिर्फ इतना बता दे कि तेरी जो हाजत थी इस्तिंजा, वो दीन क्या कहता है उसके लिए, तेरे दीन का तरीका बता दे। जब हमने जमीन के ऊपर पता नहीं है, जहां हमारी स्कूल है सिखाने की, जहां हमारे मदारिस है, मकातिब हैं, यहाँ सीखने का मौका दिया है अल्लाह ने, तो कब्र के नीचे कैसे पता पड़ेगा? किससे पूछेंगे? किसको फोन में लाएंगे? नंबर लेके जाओगे? नहीं भाई, नंबर लेके जाएंगे क्या कब्र में? तो वहां कैसे जवाब दिया जाएगा भाई? फिर अब दूसरी बात यह है कि जवान तो सोचते हैं हमें मरना नहीं, हम तो बूढ़े होकर मरेंगे, इतना संगवाई लेंगे। बूढ़े सोचते हैं जब अब तक ही ना हो तो अब कोई हमारे को बिगाड़ सके, अभी हम दीन का ही सीखें।
तीसरा जो सवाल होगा कि बता तेरा नबी कौन है। अब हम बताएंगे सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, कौन कौन है भाई, जिनने हम जान रहे हैं उन्हीं तो बताएंगे। और अगर हम बता भी दें कि हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ते यहाँ पे भी तो कर सके हमसे सवाल कि जब तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है तो तेरी जिंदगी में कितना तरीका था। नबी का तरीका क्या है? एक डाकू है, और जो बादशाह है, रियासत का जो बादशाह है, उसके खजानों को लूटने की नीयत है, बाकी उससे वहां जाया ही नहीं जाता। डाकू का जितना गिरोह है, बादशाह के किले में घुसने की हिम्मत ही नहीं होती। उसको लगता है कि इस गेट से जाएंगे तो ये मार देंगे, ये चौकीदार जो सिपाही खड़े हैं, इधर से जाएंगे तो इधर से मार देंगे, दीवारें ऊंची हैं। कुल मिला के वो बेचारा बड़ा परेशान डाकू कि भाई ये किला नहीं लूट सकता, राजा का महल नहीं लूट सकता, राजा का खजाना नहीं लूट सकता, और मुझे इसकी जरूरत है। तो किसी उसके साथी ने उसको राय दी कि हजरत मसनूई पीर बन जाओ, आ गया जाओ पहले, यानी नकली पीर साहब बन जाओ। ये एक ऐसा धंधा है कि इसमें बादशाह भी आके मिलेगा और फकीर भी आके मिलेगा। तो डाकू की समझ में बैठ गई कि यार सही बात है, यही रास्ता एक आसान है। तो अच्छा जुब्बा पहन लिया, पगड़ी बांध ली, हाथ में तस्बीह ले ली सबने, जो भी साथी थे 14, 15, 20, 25, और एक जो रास्तों का चौराया था उस रास्ते पे एक झुग्गी तान ली, और जब कोई आता दिखे तो अल्लाहु 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 अल्लाहु, और जब कोई ना आता दिखे जब अपनी वही बतलाने लग जाए, यार अभी तो कोई भी खबर नहीं आई, कौन जासूसी देख बादशाह के यहाँ कैसे घुसा जाए कैसे नहीं घुसा जाए। और फिर जब कोई आता दिखे तो वही अल्लाहु अल्लाहु। तो अल्लाह की कुदरत देखो, इसलिए अल्लाह के रसूल ने 14.5 साल पहले बता दी, इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमाल का दार मदार नियत पे है। अब ये डाकू है, इसने जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधी है, हाथ में तस्बीह है, और बैठे हैं। उधर बादशाह के एक ही लड़का है, अल्लाह ताला उसको बीमार कर देते हैं। अब उसने अपने तबीब हकीम जो भी उस दौर के थे, अच्छे से अच्छे बादशाह की जो पहुंच होती है वहां तक उसने अपनी पहुंच को आजमाया और अच्छे तबीबों को बुलाया, बाकी सब आजिज आ गए और सबने मना कर दी कि बादशाह सलामत, अब इसको कोई नहीं बचा सकता, हमारे जितनी भी हम पे तब है उससे ये हटके है। मायूस बादशाह, एक ही बेटा अब रजवाड़ा लुटता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी ने कहा बादशाह सलामत, मायूस होने की जरूरत नहीं है तमन्ना जन्नत की तो करो खिदमत फकीरों की, कजा को भी टाल देती हैं दुआएं रोशन जमीरों की। फला जगह पे एक पीर साहब है, अगर आप चाहो तो उससे दुआ करा लो, हो सकता है अल्लाह ताला आपके बच्चे की जान को बख्श दे। तो परेशान आदमी तो जिसका माल खो जाता है या चोरी हो जाता है वो हर आदमी पे शक करता है, और जो परेशान होता है वो हर आदमी पे यकीन करता है। तो बादशाह ने कहा जाओ उसकी दावत बोल के आओ पूरी जमात की, और वो उससे कह के आओ फला टाइम पे आए, खाना खिला करके जब दुआ कराएं। अब भाई हलकारा जाके पहुंचता है और कहता है पीर साहब आपकी बादशाह सलामत के यहाँ दावत है और इतने बजे आपको आना है। बल्ले बल्ले भाई, जहाँ मैं आज तक ना घुसो जा रहा, जाके ऊपर जिंदगी वीरान कर दी, उसका रास्ता खुद ही दावत दे के बुला लिया अंदर, इसमें हथियार इसमें हथियार, यहाँ हथियार, जहां जहां भी उन्होंने दुबकाने थे हथियार, और सबकी ड्यूटी लगा दी कि घुसते वक्त तुझे उन पर नजर रखनी है, तुझे ये देखना है, तुझे खजाने का रास्ता देखना, यानी चलते हुए में ही कर लेना अपना काम जो भी करना है, फिर निकलेंगे जब लूटना। अब चला, अब उनका तो वही जहां ड्यूटी थी वहीं उनकी वही नजर, वही सोच, वही अपना दिमाग लगाना। वहां पहुंचे, पहुंच करके खाना वाना खिलाया बादशाह सलामत ने, और खाना खा करके कही वो नहीं ऊपर तो नहीं दुआ की भी कहे उन्नति ही कि दावत खाएंगे और दावत खा के लूट लाएंगे, अब तो घुसे रहे भीतर। तो कहा हजरत एक ही बेटा है और बहुत ज्यादा सख्त बीमार है, सारे तबीब मना कर चुके, दुआ कर। अब हुआ नहीं देखे रुआ नहीं देखे, आखिर साथी ने की बीच महल में घुसे पड़े हैं, चारा क्या है, बैठ और दुआ कर, इशारे में बता दी। अब ये बैठा तो पता उसने क्या कहा, जब दुआ के लिए बैठा, ए अल्लाह
मैं तो खुला हुआ हराम खाता हूं, डाकू हूं, आप मुझे मुझसे ज्यादा जानते हो, और मेरा मकसद यहाँ आने का जो है वो भी हराम के लिए, इसका खजाना मुझे लूटना। मेरा इसके बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं, जो मेरा असली काम है वो है इसका खजाना। पर मेरे मौला, ये जो लिबास पहना ये तेरे नबी की सुन्नत है, ये जो चेहरा नकली बनाया, नकली दाढ़ी लगाई ना, ये जो मसनूई चेहरा बनाया है ये तेरे नबी की सुन्नत है, ये जो पगड़ी बांधी है ना ये तेरे नबी की सुन्नत है, और इसका यकीन तेरे नबी की सुन्नत पे मुझ पे नहीं है। ए मेरे मौला, तू तेरे नबी के लिबास का, इसका वास्ता देता हूं, इसकी लाज रख दे। अभी हाथ नीचे भी नहीं हुए कि बच्चे में हरकत पैदा हो गई और आवाज लग गई, बात से सलामत बच्चा खड़ा हो गया। जब ये काम डाकू के कानों में गई कि बच्चा खड़ा हो गया, तो अब बताओ इसका क्या हाल हुआ होगा उस वक्त। इसने कहा जब मेरा मौला हराम खाते खाते मेरी सुन सकता है, मैं हराम खाते खाते जिंदगी गुजारी है, और हराम जबान से मेरे अल्लाह मेरी दुआ को सुनता है अपने नबी के लिबास पर, तो क्यों ना मैं इस हराम से ही तौबा कर लूं, और इसी लिबास को क्यों ना अपना लूं। अब मौत तक बची कितनी है, वही मुसल्ले पे बैठे बैठे तौबा कर ली। और फिर पता है क्या हुआ, जितने वो लूटते नहीं इतना इनाम बादशाह ने उनको वाकई सदके में दे दिया बेटे के, जमीनें बांट दी उनको, रियासतें बांट दी उनको। तो ये लिबास तो वो लिबास है जिसके बारे में हमसे जमीन के नीचे पूछा जा रहा है कि बता तेरा नबी कौन है। हमें बड़ी शर्म आ रही है मुसलमान बनने में, कहीं कोई हमें काट दे, कहीं ऐसा नहीं कोई हमें, चमार बनने में बड़ा मजा आ रहा है। ठाकर भी अपनी पिछान रखता है, वो भी मुंह छूटता है। पंजाबी को 10,000 आदमियों में पिछान लो, 10,000 नहीं 1,00,000 आदमी में एक पंजाबी को पिछान लोगे पगड़ी से दाढ़ी से। मुसलमान का बच्चा नहीं पिछान सकता कि मेरा बाप मुसलमान, या अगर उसके घर पे मुसलमान आ गया तो उसको नहीं पिछानेगा बच्चा कि ये कौन है, दाढ़ी भी है, या कुर्ता भी नीचे हो, या पे पजामा भी ऊंचो है, या पे टोपी भी है, तो वो नहीं पिछानेगा। आज हम बन क्या रहे हैं? जवाब हमें इन 3 चीजों का देना है, और इन 3 चीजों को छोड़ के हम जा कहां रहे हैं। अभी मैं भी देखता हूँ मोबाइल, ऐसी बात नहीं मैं भी नहीं देखता, कई एसपी डीएसपी इनके फोटो आ रही, इतनी दाढ़ी है उनके, वो हिंदुस्तान की नौकरी कर रहे हैं यार। तुम तो हिंदुस्तान के कुछ टुच्चे लोगों के पास बैठते हो, मैं और तू तो, जिसलिए हम नबी के चेहरे को भी हटा दिया, नबी के लिबास को भी हटा दिया, अपने को हटा दिया। कोई बात नहीं, हम पे एक बहाना है कि हम बाहर भीतर डोलते हैं, बाकी बेटियों का भी हटा दिया, बेटों को भी हटा दिया, बीबियों का भी हटा दिया, तो इससे भी ज्यादा अब क्या गिरेगा इंसान। तैयारी है हमारी इस बात कहने को, बता तेरा दीन क्या है, इसका जवाब है हमारे पास, तेरा नबी कौन है इसका जवाब है हमारे पास। और ऐसा लगता है कि 10,000 साल बाद हमारी मौत आएगी तो हम तैयारी कर लेंगे। लंबे कब्रिस्तान, दूर के कब्रिस्तान बहुत सारी जगह हैं, यहां से चलो दूर तक जाते हैं। कितने लोग मैंने देखे खड़ा होके कब्रिस्तान मुर्दे के पीछे पीछे चल रहे हैं, और पेशाब लगा खड़ा होके मूत लिया, और बस चल भाई, और फिर वहां जाके पानी मिल गया तो वजू नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बैठ जाएंगे। क्या यही पूछा जाएगा? फिर कब फिक्र होगा? बच्चों के एतबार से चलें तो उनको इंजीनियर और पायलट बनाने हैं, उनको नहीं सिखाया, उनको नहीं बताया कि बेटा हमारा रब अल्लाह है, हमें पालने वाला अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारे इस्लाम में ये चीज गलत है और ये चीज सही है। हमारा नबी जो है आखिरी सांस तक यूं कहता कहता इस दुनिया से गए, अल्लाह मेरा उम्मती है, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये तो जमीन पे जिंदा थे जब रहा, और जब पर्दा कर गए दुनिया के अंदर, और जिस दिन खड़े होंगे तो कहा हशर के मैदान में से उस वक्त तक सजदे को मैं से नहीं खड़ा होऊंगा जब तक अल्लाह से मेरे एक एक उम्मती को न बख्शवा लूं। उसका लिबास बुरा, उसका चेहरा बनाना बुरा, उस खाने में उसकी सुन्नत को अदा करना बुरा, मूतने में उसकी सुन्नत को अदा करना बुरा। एक भी सुन्नत हमारी जिंदगी में नहीं है, एक भी सुन्नत। और फिर हम बड़े खां साहब हैं,
कौन है? मुसलमान। भाई कैसे हैं मुसलमान? मुसलमान तो दो अल्फाजों के हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान वाला मोमिन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान है। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह पर यकीन, ये तो बहुत बड़ी बात है, अब तो बहुत टाइम हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद के तरीके पे चलना, मोहम्मद की गवाही देना कि हमें उसको कबूल करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तरीका लेके आए वो अल्लाह की तरफ से बरहक लेके आए। जब मुसलमान बना जाता है, कोई नाम धरने से मुसलमान बना जाएगा? भाई जानवर हम खाते हैं तो जानवर गैर मुसलमान भी खाते हैं, कौन नहीं खाता? हमारा तरीका खाने का अलग है, उनका तरीका खाने का अलग है, ये चीज तो अलग है। आग वही है, पानी वही है, बर्तन वही है, मसाले वही हैं, फिर क्या फर्क रहा? कुछ तो फर्क होना चाहिए हर आदमी में। अगर एक गांव में एक बाप के दो बेटी हो और दो जगह से उनकी बारात जाए, एक की इस गांव से एक की उस गांव से, सही बताओ, तुमने ये नहीं देखा कि दोनों उनमें फर्क रहेगा? सोचर लेते रहे, वो कहा ले जा रहा हो, अपन वासो अलग चलेंगा, लला ऐसा करना है, ऐसा करना। तो ये दुनिया में तो हमने फर्क ढूंढ लिया, बाकी नबी का बनने में कोई फर्क नहीं ढूंढा कि भाई जो नबी को नहीं मानता वो तो नहीं मानता, हम तो नबी वाले हैं ना। हमारा तो कलमा भी निकाह भी उसी के हवाले से पढ़ाया जाता है, दूसरे की बेटी हमारे लिए हलाल उसके हवाले से होती है। अगर हम अल्फाज बोल दे तो उसके हवाले से वो हमें गैर महरम हो जाती है, हमारी बहन जैसी हराम हम पे वो हो जाती है। और हमें जिस दिन दफनाया जाएगा, मेरे नबी के कहने पर दफनाया जा रहा है, नहीं तो हमको भी जला करके फेंक दिया जाता। फिर हमें कितनी शर्म आती है नबी के तरीके पर चलने में। तो कब्र में हमें जवाब नहीं देना, कब्र में हमसे कोई पूछ नहीं होगी। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हर मुसलमान को जमीन पे चलने वाले को, फिरने वाले को, बसने वाले को हिदायत अता फरमाए। हमें कम से कम ये दुआ तो अल्लाह से कर लेनी चाहिए कि मौला 5 वक्त का नमाजी बना दे, क्योंकि इस पे वादा है अल्लाह का। जब सहाबाओं पे आई नमाज तो ना खुशी मनाई सहाबाओं की, अब कमाने की जरूरत नहीं, अब अल्लाह ने अल्लाह के खजानों में से मांगने का जरिया दे दिया। आज हमें नमाज खजानों से रोक रही है कि हमारा तो काम छूट जाएगा, ये कर लिया तो वो हो जाएगा, वो कर लिया तो वो हो जाएगा। 80 साल की उम्र में जा रहा है, सना तक नहीं सीखी, 80 साल की उम्र में मौत आ रही है, कलिमा सीधा नहीं किया कि कलिमा कैसे पढ़ा जाता है, कलिमे के मायने क्या है, कलिमे का हक क्या है, ये हमने नहीं पूछा। बस जानवर भी ऐसे ही जीते खाते चलते दौड़ते एक दूसरे को मारते एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए मर गया, इंसान भी इसी तरीके से मर गया। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा कि इंसान को तो मैंने बहुत बहुत अहसन तकवीम के साथ पैदा किया, अशरफुल मखलूक बनाया है। फिर ये अशरफ मखलूक का तरीका है जो आज हम कर रहे हैं, किसी के बकाए में आके हम अपने दीन को छोड़ दें, अपने रब को छोड़ दें, अपने रब से दूर हो जाएं। कोई भी आदमी को देख करके कितना बड़ा हुआ है, अगर कोई लड़की हाफ पैंट पे हाफ या यहाँ तक को कच्चा पहन के कोई साइकिल लेके आ जाए तो हम अपनी सारी लड़कियों को हाफ कच्चा ला दे, साइकिल ला दे भाई मैं अंग्रेज। अरे वो क्या दे के गया है? वो तो एक बुराई फैला के गया है। मेरा नबी कह के गया है, मेरी नबी की बेटी ने कहा है जो सारी औरतों की सरदार होगी कि अली मेरी बात सुन ले, मेरे जनाजे को रात में निकालना, और तुम चारों के अलावा, तीनों के अलावा चौथा कोई ना होना चाहिए, क्योंकि आज तक मेरी उंगली का पोरवा किसी ने तेरे अलावा किसी ने नहीं देखा, गैर महरम ने। ऐसा ना हो कि तो दिन में मेरा जनाजा निकाले और मेरे जनाजे पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। हमारी बेटियां तो फातिमा की बेटियां हैं, हमने कंजरियों की बेटियां क्यों बना दे भाई? हम खिला हम रहे हैं, पिला हम रहे हैं, नाज नखरा हम उठा रहे हैं, तो फिर हम कैसे गैर के तरीके को इख्तियार कर लें? आज जो हमने देख रखा है, बेटा जवान है, फटे पैंट को 3 जगह से फट रहा है, कीमत ज्यादा दे के आ रहा है। नंगा बेटी मेरी जवान बेटी के सामने, मेरी बेबी के सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी बहनों के सामने नंगा घूम रहा है। भाई सतर कहाँ तक है? चौथाई पिंडली का हिस्सा सतर में आता है। ये नंगा है, सैंडो बनियान पहली, बाप भी बेटे इतने बाल बढ़ रहे हैं, बेटी के सामने बैठा है, बहन के सामने घर में बैठा है। अरे तो ये दीन है कि क्या है भाई? ये तो गैरों का हिसाब है। इतने बाल खड़े जो नापाक हैं, जो सतर की हुआ में आते हैं, वो बाल उनको दिखा रहा है, कोई कच्छे में घूम रहा है, कोई कुछ में घूम रहा है। ए खुदा के बंदो, बच्चा क्या नहा के तो देखो, अकेले नहा के देखो कच्छे में, तुम्हारा सतर जाहिर होता है, उसमें पानी गिरते ही सतर जाहिर होता है। और फिर चलते फिरते हो तो हरकत दिखती है कि अब तुम्हारा फला जिस्म का अंग कहाँ है। और फिर तुम बेटियों के सामने, बहनों के सामने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खामिंद बीबी का सतर ना देखे और बीबी खामिंद का सतर ना देखे।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहम साक ईमान में जो है वो हया है। कहाँ रही हया? बेटी टी शर्ट पहन रही हैं, लोवर पहन रही हैं, अरे खुदा के बंदे हो, वो बेटियां थी खुदा की कसम, वो देखी हैं बूढ़ी बड़ी, जिनके चेहरा देखने के लिए लोग डंडान पकड़ ढुके है, वो वाकू पर नू झुक जावे, रुक जा मुझे देखने दे। कोई आनी जानी जब छोरी छापरी आवे ही ब्याह शादी में तो खुदा की कसम कच्चे डंडा गिर पड़े, इतने 8-7 गुंड इकट्ठे हो जावे है छोरेठ देखने को, यार फलाने की बहू देखें, पर देख नहीं पाते थे। साल में 2 साल में कहीं जंगल में लावणी करती को ऐसे छिपक के देखते थे। आज बेटियां खुले सर घूम रही हैं। ये इस्लाम बिगड़ रहा है कि कोई और मजहब बिगड़ रहा है? फिर हम पे मुसीबत नहीं आएंगे तो का इनाम आएंगे? अल्लाह ताला हमें कहने सुने।